بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال تبارك وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اس وقت ریاست مہاراشٹر کے 5 سالہ الیکشن کا دور چل رہا ہے. سب سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ سیاست دنیا کی بات نہیں، دین کا حصہ ہے. کسی بھی ریاست کو قائم کرنے کے لیے اور کسی ملک کی تعمیر اور ترقی کے لیے سیاست اور اس کی حکمتیں اور اس کے طریقوں کو جب تک ہم نہیں اختیار کریں گے، اچھی حکومت، اچھی ریاست، عدل و انصاف کا ماحول اور پرسکون زندگی گزارنے کا موقع ہمیں نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مدینہ کو فلاحی ریاست بنانا تھا، امن والی ریاست بنانا تھا، عدل و انصاف کا گہوارہ بنانا تھا. تو وہاں کے رہنے والے دوسری جو برادریاں تھیں، قومیں تھیں، ان سے آپ نے پیکٹ کیا اور معاہدہ کیا کہ مدینہ کو ہم کیسی فلاحی ریاست بنائیں گے اور امن والا گہوارہ بنائیں گے، اس کے لیے ہمیں تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے. یہ سیاست نہیں تو اور کیا ہے. یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کیا، منافقین سے ایگریمنٹ ہوا، وہاں کے جو مشرکین تھے پہلے سے مدینۃ المنورہ میں جو آباد تھے ان سے بھی آپ نے معاہدہ کیا، وہاں کے تمام تر باشندوں سے. یہ جو 5 سالہ الیکشن بار بار آتا ہے، یہ ہمارے اگلے 5 سال کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اس کو یوں ہی نظر انداز اب تک ہم کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے. اب تک کرتے تھے، اب نہیں کر سکتے. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ پچھلے 4 سے 5 ماہ پہلے جو پورے ملکوں میں لوک سبھا کے انتخابات ہوئے، پارلیمنٹری جو الیکشن ہوا، اس میں علماء اکرام کی رہبری اور رہنمائی اور ان کی فکر اور جد و جہد کے نتیجے میں جو فسطائی طاقت اور ظالم طاقتیں پھر سے ملک کے اقتدار میں آنا چاہتی تھی اور پوری طاقت کے ساتھ آنا چاہتے تھے، الحمدللہ علماء کے مشورے پر قوم چلی. مشائخین اور بزرگوں کے ہدایات اور نقوش پر لوگوں نے اپنا رائے دہندگی کا استعمال کیا اور ووٹنگ کا استعمال کیا. جو لوگ پھر سے وہی ظلم و ستم کے خواب دیکھ رہے تھے،
अल्लाह ताला ने उनको उनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर नहीं होने दिया, चकनाचूर कर दिया। वो बैसाखी की सरकार चला रहे हैं इस वक्त। बैसाखी समझते हो ना? राजमय वाले समझते कि नहीं? जरा सर अलाओ तो। सारे वाली ज्यादा जोश नहीं बता सकते। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने होशमंदी का सबूत दिया। इस वक्त तो हमारी रियासत का मसला है। हम जिस रियासत महाराष्ट्र में रहते हैं, हम उसके एक सदस्य हैं, उसके एक फैमिली मेंबर है। इस रियासत के अमन व अमान को बाकी रखना, इसको तरक्की की राहों पर ले जाना, ये अच्छे अफराद के हुकूमत में बैठे बगैर हो नहीं सकता। और अच्छे अफराद, रहमदिल इंसान, कौम का जज्बा और दर्द रखने वाले लोग इलेक्शन ही के नतीजे में हम चुनकर आगे दे सकते हैं। उसका रास्ता यही है, कोई दूसरा रास्ता इससे होकर के नहीं गुजरता है। तो इस एतबार से भी इसकी बड़ी अहमियत हुई। इसलिए सबसे पहली बात, इन हालात के पेश नजर हर एक तो ये दावा कर रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं। कौन अपने को बुरा कहता? न फर्द अपने को बुरा समझता और कहता है, न अंजुमने अपने आप को बुरा और जो है गलत समझती है, न सियासी जमातें, न और कोई तंजीम अपने आप को, सब दूध के धोएले अपने आप को समझते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हर इंसान को अकल अता फरमाई है। और जो ईमान वाले हैं उनके पास तो थर्मामीटर है। थर्मामीटर समझ रहे आप? नापने और खरे और खोटे को नापने का तराजू, अच्छे और बुरे में तमीज करने का मेयार और सलाहियत खुसूसन अल्लाह ताला ने अहले ईमान को अता फरमाई। इसलिए ईमान वाला अपना छोटा अमल भी आंख बंद करके नहीं करता। बड़ा अमल जिससे 5 साल तक उसकी कौम का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, उसके बच्चों की तामीर और तरक्की जुड़ी हुई है, उसे तरक्की की राहें जिस 5 सालों में मिलना चाहिए, उस इकदाम व अमल को एक ईमान वाला अंधाधुन कैसे करेगा? उसे सोच समझकर किसी तरह का फैसला करना चाहिए। यही बात कहने आपकी खिदमत में आज हाजिरी हुई है और जामे से भी इसकी तलकीन की गई है कि समझाया जाए, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वैसे तो इस वक्त तो हालात ऐसे हैं मुसलमानों के भाइयों कि हर आदमी अपने आप को लीडर समझ रहा है। हर आदमी अपने आप को लीडर समझता है। और चौक चौराहों पर और नुक्कड़ों पर और जो है होटलों पर जब मुसलमानों के आपस में मुल्की और रियासत के हालात पर तबसरे सुनते हैं हम, तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा इसको समझता है, इसको ही जो है प्रधानमंत्री बना देना चाहिए अपना। ऐसे हालात है। सबसे पहली बात ये समझे मेरे भाई कि जो वोट हम 20 तारीख को देंगे ना, सबको देना है। उसकी बुनियादी तौर पर 3 हैसियतें हैं। उसकी हैसियत शरई तौर पर, वो शरीयत का हिस्सा है वोट देना, दीन दुनिया का काम नहीं है, दीन का हिस्सा है वो। उसकी हैसियत क्या है शरई तौर पर? उसकी पहली हैसियत ये है शहादत और गवाही की। हम जिसके हक में वोट डालेंगे और डालते हैं, गोया हम उसके अच्छा होने की, कौम का खैरखा होने की, हमदर्द होने की और काम का आदमी होने की शहादत और गवाही देते हैं। ये बक्सों में हमने डाल दिया कि ये अच्छा आदमी, मेरा नुमाइंदा, ये काम करेगा, कौम की तामीर का सोचेगा, ये हमने गवाही दी गोया। और गवाही अच्छे के हक में दी जाएगी, सच्चे के हक में दी जाएगी, काम वाले के हक में दी जाएगी। निकम्मा, नाकारा, जालिम और जाबिर ऐसे किसी शख्स के मुताल्लिक हम गवाही नहीं दे सकते हैं। क्यों? झूठी गवाही देने से तो हमको मना किया गया है। इज्तनीबू शहादत ज़ूर, झूठी गवाही से अपने आप को बचाओ। एक आदमी
काम का नहीं है। माजी में हमने उसको देखा, वो अपनी रियाया के साथ, अपने महतहतों के साथ जुल्म और सितम को रवा रखता है और करता है। माजी का उसका किरदार तामीर और तरक्की का नहीं है। तेज जुबान कहता है, आंखें लोगों को दिखाता है, सही राह पर कौम और मिल्लत का काम नहीं करता है, बल्कि अपने ऐश कदों के अंदर जिंदगी गुजारता है। कभी अवामुन नास के अंदर आ करके उनका दुख दर्द बांटता नहीं है, उनके बच्चों के अच्छे फ्यूचर और मुस्तकबिल का सोचता नहीं है, तामीर और तरक्की का उसका मिजाज नहीं है। अगर लेकिन मुझे पसंद है, वो मेरा और आपका महबूब लीडर है, नेता है, हम फिर भी उसी को ओढ़ देते हैं। ये गोया कि हमने उसको उसके हक में झूठी गवाही दी, गलत फैसला किया, गलत फैसला किया हमने, झूठी गवाही दी। अब इसका नतीजा क्या होगा? अगर मेरा आपका जाती और पर्सनल अगर मामला हो और मैं आपके हक में झूठी गवाही दूं तो इसका नुकसान सिर्फ मुझे पहुंचेगा। लेकिन ऐसा कैंडिडेट, ऐसा नामजद उम्मीदवार, ऐसा जो है इलेक्शन में खड़े रहने वाला लीडर जो सही आदमी नहीं है, जो अभी मैंने आपको बताया, फिर भी मेरा चहीता है इसलिए मैं उसी को दूंगा वोट। गोया के 5 सालों तक एक जालिम, एक जाबिर, एक निकम्मा और एक नाकारा इंसान को आपने ओढ़ दे करके कौम के सरों पर मुसल्लत कर दिया। जितने गलत काम वो करता रहेगा, जितने जुल्म सितम के नक्शे वो बनाएगा और जितने जो है लोगों के लिए हक को मारने के नक्शे वो सजाएगा, सब में शरीक ये ओढ़ देने वाला आदमी रहेगा, गुनाह मिलता रहेगा इसको। गलत आदमी को चुना ना आपने, उसके गलत कामों में ये हिस्सेदार रहेगा और कौम के लिए एक अजाब आपने लाकर खड़ा कर दिया अपनी गलत ओट के नतीजे में, गलत शहादत के नतीजे में। इसलिए समझिए कि सही शहादत और सच्ची शहादत और गवाही देना है हमको, यानी ओट देना है। तो ये शहादत और गवाही है जो हम ओट की शक्ल में देंगे। दूसरी हैसियत हमारे ओट की सिफारिश। ये सिफारिश है, जो बंदा खड़ा है हम उसे ओढ़ देते हैं अपनी चाहत और अपने दिल की आवाज पर, जमीर की आवाज पर आदमी ओट करता है। गोया कि हम उसकी सिफारिश कर रहे हैं लोगों से ओढ़ दे करके कि ये अच्छा आदमी है। जैसे किसी के बारे में मार्केट में हम सिफारिश करते हैं ना कि भाई इसको माल दे दीजिए, ये काबिल एतमाद है, ये अगर जो है मार्केट से लेकर के भाग गया तो मैं जिम्मेदार हूं। सिफारिश करके उसको मार्केट से माल दिलवा देते हैं अपने एतमाद और भरोसे पर। ओढ़ देना गोया उस नुमाइंदे की और उम्मीदवार के हक में गोया एक तरीके की सिफारिश कर रहे हैं हम कि लोग इसको ओढ़ दो और ये काम का आदमी। तो सिफारिश तो गलत नहीं होना चाहिए, सच्चे और सही आदमी की सिफारिश होना चाहिए ना। इसलिए इस एतबार से भी सोचना है कि हम गलत सिफारिश तो नहीं कर रहे हैं और 5 सालों तक एक गलत आदमी को कौम के ऊपर मुसल्लत करने के जिम्मेदार तो नहीं बन रहे हैं। तीसरी हैसियत हमारे ओट की है अमानत की। मैंने आयत पढ़ी आपके सामने, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला कुरान में हमको हुक्म दे रहे हैं, ए ईमान वालों, तुम्हें अल्लाह ताला इस बात का हुक्म देते हैं, अल्लाह हुक्म देते हैं, ऑर्डर करते हैं इस बात का, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अमानतों को, जिनकी अमानतें हैं उन तक पहुंचा दो, साहिबे अमानत को उसकी अमानत पहुंचा दो, उसमें खयानत न करो। खयानत ना करो का मतलब क्या है? एक मतलब इसका ये कि अमानत देते ही नहीं हम, ये भी खयानत है। इसलिए कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अब ये सियासत बोले तो बहुत गंदी हो गई है, एक तरह का दलदल बन गया है और एक तरीके का जुआ और सट्टा हो गया ना ये तो अब, इसलिए हमको तो है घर से निकलने का ही नहीं वोट के दिन, देने का ही नहीं बोले वोट, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, किसको देंगे वोट? नहीं देने का।
ये सोच, ये नजरिया और ये जो है मानसिकता, ये भी सही नहीं है। आप वोट छुपा, अपना हक, अपनी शहादत को आप छुपा रहे हैं। कुरान करीम ने कहा वला तक्तुमुश शहादता, गवाही को ना छुपाओ। वमन यक्तुमहा, जो गवाही को यानी ओढ़ देना गवाही है, इसको छुपाएगा यानी वोटिंग करेगा ही नहीं, फइन्नहु आसिमुन कल्बु, उसका दिल गुनहगार है, वो गुनाह कर रहा है। और शहादत को छुपा नहीं सकते हैं। अब इसका आप नतीजा देखो, कुछ लोग अगर समाज में और कौम में ऐसा समझते हैं कि मेरे वोट, एक वोट ना देने से क्या होगा, समझ रहे हैं बात को, मैं अगर नहीं गया तो मेरे एक वोट ना देने से क्या होगा। मेरे भाइयों, आपका एक वोट ही तो किसी की तकदीर का फैसला करेगा। हार जीत तो एक वोट से भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, बोलो ना मेरे को। बिल्कुल, एक कैंडिडेट को अगर जो है 2,95,201 वोट अगर मिले हैं और दूसरे कैंडिडेट और नामजद उम्मीदवार को 1,98,202 वोट अगर मिल गए तो कामयाब और फातेह कौन होगा, बोलो। जिसको 2 मिले। मेरी और आपकी एक वोट से किसी की जीत और हार का फैसला होगा। मेरे और आपके एक वोट ना देने से एक अच्छा आदमी अगर नहीं चुन करके आया, हार गया, और एक गलत आदमी अगर कौम के ऊपर अजाब बन करके मुसल्लत हो गया, तो मेरे भाइयों, हमारा एक वोट ना देना उस गलत आदमी को पूरी कौम के ऊपर जो है मुसल्लत करने के बराबर होगा। जिस तरीके से मुल्क का प्रधानमंत्री अगर वोट देने जाता है पोलिंग बूथ पर, उसके एक वोट की जितनी अहमियत है, और वजीर आजम के एक वोट से अगर किसी की हार जीत का पाला इधर से उधर अगर हो सकता है, एक आम देहाती और शहरी के एक वोट के से भी उसका भी दर्जा यही है, उसके एक वोट से भी किसी की तकदीर का, जीत और हार का फैसला हो सकता है। दोनों की हैसियतें बराबर है। इसलिए हर आदमी अपने वोट की हैसियत को समझे, उसे देना है। ये गवाही है, ये शहादत है, इसको छुपा नहीं सकते हैं, घर में बैठ नहीं सकते हैं, निकलना है हमको इंशाअल्लाह को। तो दूसरी हैसियत इसकी सिफारिश की है। अच्छे लोगों के हक में हम सिफारिश करेंगे कौम के लिए। और तीसरी हैसियत बताया मैंने अमानत की है कि हम गोया किसी को अगर वोट देकर जिताते हैं तो गोया अमानत को हमने साहिब अमानत के हवाले कर दिया कि ये आदमी हकदार था, कौम का रहनुमा बने, आमदार बने, खासदार बने, ये कौम का लीडर और नेता बने, मेहमान बने। हमने अमानत को गोया साहिब अमानत के हवाले कर दिया वोट देकर, और कौम का उसको लीडर बना दिया, गोया कि हमने अपनी अमानतदारी का सबूत दिया है। इसलिए अमानत भी साहिब अमानत को दे देना चाहिए, लेकिन जो उसका हकदार हो, जो उसका हकदार हो उसको देना चाहिए, जो हकदार नहीं है उसको नहीं देना चाहिए। इसलिए अब तक हम जिस नजरिए से भी वोट देते आए हैं, अब मुल्क के हालात, हमारी अपनी रियासत के हालात अब मेरे भाइयों ऐसे नहीं रहे हैं कि बस हम अपने चहीते लीडर को आंख बंद करके वोट देते जाए और आगे पीछे का, कौम का, अपने बच्चों का, अपने हुकूक का कुछ ना सोचे और समझे। अब तक ये गलती माजी में जो अभी गुजरा है पार्लियामेंट इलेक्शन, उससे पहले तक हम 75 सालों से मुल्क में करते चले आए हैं। आंख बंद करके हम किसी के भी पीछे चलते हैं। अब ये एहसास जिंदा और बेदार होना चाहिए, ये सियासी शऊर जागना चाहिए हमारे अंदर में कि हम अपने वोट की ताकत से किसी को गद्दा नशीन करते हैं, तख्त नशी करते हैं और उसको सरबराह बनाते हैं। वो 5 सालों तक हमारी ताकत के बलबूते पर मुल्क का, कौम का, रियासत का, इलाके का सरबराह और जिम्मेदार बनता है, और 5 सालों तक हमारे हुकूक को अपने पैरों के नीचे रौंदता और कुचलता है। कैसे आदमी को हमने ऊंचा जो है अपने वोटों की ताकत से आगे बढ़ाया है, ये सोचना है। मैंने 15 दिन पहले जामे मस्जिद अक्कलकुआ के अंदर ये बात उनसे सवाल किया, ये हमारे जो रोड और रास्ते, एक रोड रास्ता हमारे इलाके में सही नहीं है। मैं गांव शहर की बात कर रहा हूं, एक रोड रास्ता हमारे शहर का, हमारे इलाकों का सही नहीं है। क्या आपने वोट नहीं दी थी? क्या आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था?
आज फिर वही लोग आपके दरमियान में आएंगे वोट मांगने के लिए। आप जब आए तो उनसे सवाल करो। हर शहरी का, हर बाशिंदे का, हर इलाके में रहने वाले जो है हिंदुस्तानी नजात का, अपनी रियासत में रहने वाले का ये अधिकार और राइट और हक है कि आने वाले कैंडिडेट से वो पूछे कि 5 साल तक तुमने हमें अपना चेहरा नहीं दिखाया, आज हमारे हुकूक को 5 साल तक तुमने पामाल किया, हमें रोड अच्छी ना मिली, हमें गटर को जो है साफ सुथरी गटर का निजाम ना मिला, हमारे बच्चों के लिए अच्छी तालीम का तुमने इंतजाम नहीं किया, अच्छे हॉस्पिटल का तुमने इंतजाम नहीं किया, हमारी बुनियादी सहूलतों के लिए 5 साल तक तुमने क्या किया। यह सवाल करने का हक होता है यार किसी को। हम अंधाधुन काम ना करें मेरे भाई। गए वो दिन, अब मुल्क में फिजा बदल रही है, मुल्क में हालात चेंज हो रहे हैं, सोच और विचारधाराएं बदल रही है। सबसे बुनियादी बात मैं आपके हवाले कर रहा हूं, हर मुसलमान, हर व्यक्ति ईमान वाला ये सोचे कि मुसलमानों की लीडरशिप कैसे खड़ी होगी। कब तक हम किसी काका के पीछे, किसी नाना के पीछे, किसी भाऊ के पीछे, किसी अन्ना के पीछे, किसी दादा के पीछे, किसी दादू के पीछे चलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश जो मुल्क की सबसे बड़ी रियासत कहलाती है, यादव समाज 12% है, उनका वजीर आज़म आला बनता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। महाराष्ट्र में मुसलमान 12% है, आज तक हमारा चीफ मिनिस्टर बना, नायब वजीर आला आज तक कोई बना। पिछले लोकसभा इंतखाबात हुए, 48 मकामात मेंबर ऑफ जो है पार्लियामेंट, 48 जो है मेंबर पार्लियामेंट्री की जगह थी, यानी मेंबरान चुन के जाते हैं 48, किसी ने एक मुसलमान को जो है टिकट नहीं दिया था। खैरखा कौन है, बदखा कौन है, हमारा भला कौन सोचता है और चाहता है, हमारा बुरा कौन सोचता है और चाहता है, ये समझने की हर किसी इंसान को जरूरत है। सिर्फ सेकुलरिज्म का झंडा लेकर जो लोग आते हैं, सेकुलरिज्म की जो लोग सिर्फ बात कहते हैं मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के झांसे में आने की कोई जरूरत नहीं है। कोई खैरखा नहीं है, हमारा अपनी लीडरशिप को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन हम लोगों ने बहुत देर कर दी है। हम जैसे हुक्मरान चुनकर देंगे, ये बात गौर से सुनना, वैसे आप बहुत गौर से ही सुन रहे हैं, जैसे हुक्मरान हम जो है चुन करके देंगे, रियाया उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती है आवाम, आवाम भी वही सोचती है, वही करती है। गौर करना इस बात पर। हज्जाज बिन यूसुफ का जमाना है, हज्जाज बिन यूसुफ सल्तनत उमविया का एक जो है खूनखार बड़ा मशहूर जमाना जो है फरमा रवा गुजरा है, वो जुल्म ज्यादती उसका निशान बन चुका था हज्जाज बिन यूसुफ का। इसे कत्ल करना, उसको फांसी देना, रोजाना का उसका यही काम था, हत्ता कि उसके हाथ सहाबा के कत्लों में भी रंगीन हो गए हैं। तारीख ही कहती है, लिखा है तारीख में कि जब लोग सुबह करते, उसके जमाने में सुबह होती और लोग एक दूसरे से पहली जब मुलाकात करते तो लोग एक दूसरे से ये पूछते थे कि रात किसको कत्ल किया गया, किसे तख्ते-ए-दार और फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, किसके मौत के घाट उतार दिए गए। पहला सवाल लोगों का आपस में ये होता, क्यों? उनका हुक्मरान और फरमा रवा इसी नजरिए और इसी ख्याल का था। हुक्मरान जैसे होगा रियाया वैसा करेगी। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जब जो है फरमा रवा बना, तो जब सुबह लोग करते उसके ज़माने में और उसके दौरे खिलाफत में ज़माने में, तो लोग आपस में पूछते कि भाई फुला तामीर कैसे बनाई गई, फुला खाने कैसे बनाए गए, कल रात कौन सी तामीर का उद्घाटन किया गया और किस किस्म के खाने बनाए गए। इसलिए कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का मिजाज यही था, तामीरात का मिजाज था, खाने और पीने का मिजाज था। तो सुबह लोग उसी तरह की बात करते थे। इसके बाद आगे जब बात चली, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब तख्त नशी हुए और बादशाह बनाए गए, हाकिम बनाए गए, तो उनके जमाने इक्तिदार में सुबह सवेरे जब लोग आपस में मिलते तो आपस में एक दूसरे से पूछते, रात तुमने कुरान कितना पढ़ा था, तहज्जुद में उठ करके तुमने कितनी रकातें जो है पढ़ी है तहज्जुद की,
तुम्हारा कुरान कब खत्म होगा? कितने बच्चे तुम्हारे इलाके में हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं? लोग उस जमाने में जब सुबह उठते, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में तो आपस में इस तरह की बात करते थे। क्या समझ में आया इन मिसालों से आपको? हम जैसे हुक्मरां तय करेंगे अपनी ओट की ताकत से, उनके जो नुकूश होंगे, उनके जो मिजाज होगा, उनके जो ख्यालात होंगे, उनकी जो मानसिकता होंगी, उनके जो नजरियात और किरदार होंगे, वही हुक्मरानों के किरदार और नजरियात का असर पूरी रियाया पर पड़ेगा। रियाया भी वही सोचेगी, वही करेगी। मुल्कों में हिंदू मुस्लिम की बात, एक दूसरे से लड़ाने की बात, जुल्म और सितम की बात लोग करते कि नहीं? कोई कहता है मस्जिद में घुस करके मारेंगे, कोई कहता है मस्जिद के लाउड स्पीकर निकल जाएंगे। अभी एक बयान एक उसी नाटे का आ रहा है, 1.5 फुटेगा, याद है कि नहीं आपको? जैसी हमारी सरकार बनेगी तो मस्जिदों से जो है क्या निकल जाएंगे? लाउड स्पीकर निकल जाएंगे। बोले वो नशे में बात करते हैं। नशे में आदमी जो बात करता है वो आधे से ज्यादा पागल रहता है, और ऐसे पागलों की बात से कोई डरने का भी नहीं और उसका कोई ख्याल और एतबार भी नहीं होता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, रियाया अगर इस किस्म की अगर बातें करेंगी एक दूसरे के साथ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जालिम और जाबिर और गलत किस्मों के लोगों को ऊपर बैठाया है। ऐसे लोगों को नीचे लाना है, और ये वोट की ताकत से मैं और आप कर सकते हैं। यही समझाना है मुझे। ऐसे लोग जो जुल्म की बात करें, जो हक ना देने की बात करे, जो इंसाफ के दोहरे पैमाने रखते हो, डबल पैमाने रखते हो, हमारे लिए इंसाफ का तराजू उनके पास कुछ और हो, उनके वालों के लिए इंसाफ का पैमाना उनके पास कुछ हो, जो हमारे बच्चों को हम अच्छी तालीम नहीं देना चाहते, हमें गंवार, हमें जाहिल और हमें बुनियादी सहूलतों से जो लोग महरूम रखना चाहते हैं, या हमसे भेदभाव की सियासत 5 सालों तक करके हमारे वाजिबी हुकूक हमको देना नहीं चाहते, आप ऐसे लोगों को इक्तिदार तक पहुंचने में अपने वोट की ताकत से रोक सकते हो। एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कब कायम होगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत में खयानत की जाएगी तो क़यामत आएगी। तो उस शख्स ने फिर सवाल किया कि अमानत में खयानत का क्या मतलब है? किसे कहते हैं अमानत में खयानत करना? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ना अहल को, नाकारा को, निकम्मे आदमी को किसी ओहदे तक पहुंचा दिया जाए, ये भी अमानत में खयानत है। और कौन पहुंचाएगा उसको? हम तुम ना ओढ़ दे करके। कयामत कब आएगी सवाल किया। हुजूर ने फरमाया जब अमानत में खयानत की जाएगी। दोहरा रहा हूं बात को। उसने फिर सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, अमानत में खयानत का क्या मतलब है? आज के माहौल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निकम्मे को, ना अहल को, नाकारा को, नाकाबिल इंसान को, जिसमें सलाहियत नहीं, काम करने का ढंग नहीं, जज्बा नहीं, आता जाता कुछ नहीं, ऐसे निकम्मे को उठा के तुमने आमदार और खासदार बना दिया, लीडर और नेता बना दिया, गोया के कयामत आ गई। अब 5 सालों तक वो हमारे हुकूक से खेलता रहेगा, बराबर। इसलिए ये भी खयानत है कि गलत लोगों को हम चुन करके देंगे। इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने वोट की हैसियत को समझे। मेरा वक्त तो हो चुका है। हम अपने वोट की ताकत को समझे, उसकी हैसियत को समझे। हर शहरी, हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे कि मेरी जिम्मेदारी अपनी रियासत के लिए क्या क्या है। मैं यहां बैठकर इस मिंबरे रसूल से अगर ये बातें कर रहा हूं, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास मालूम होता है। मेरा दिल तो ये चाह रहा था कि मैं मालेगांव चले जाता आज, क्योंकि वहां तो मुसलमान आपस में ऐसा लड़ रहे हैं जैसे अब जो है कोई जंग होने वाली है बहुत बड़ी। देख लो ना, आज भी मुसलमानों को होश नहीं है, एक दूसरे को गिराने के लिए खड़े हो चुके हैं एक दूसरे के मुकाबले में। कई जगह है, मैं मिसालें नहीं दूंगा, आप सब जानते हैं। कई मकामात ऐसे हैं जहां एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गिराने के लिए खड़ा हुआ है, पैसे लेकर के खड़े हो जाते हैं या पैसे लेकर के बैठ जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये ना आने पाए, मेरा भाई ना आने पाए।
मेरे भाइयों, इस मुल्क में इस वक्त जो हमारी हालत और दुर्गत बनी हुई है, न जाए मानदन न पाए रफ्तन, जाए तो किधर जाए, इधर जाए तो इधर भी हमारे खैरखा नजर ना आते हैं, इधर जाए तो हमारे भी भला चाहने वाले नजर ना आते हैं। मेरे भाइयों, 75 साल मुल्क की आजादी को हो गया है, लेकिन मुसलमानों की जो हालत, जो बड़ी अकलियत कहलाती है इस मुल्क की, उनके साथ जो हालत बनी हुई है ना इस वक्त, उसमें जहां इन लीडरों ने, इन हुकूमतों के जिम्मेदारों ने हमारा ये हाल बनाया है, उसमें सबसे बड़ा किरदार अगर किसी ने निभाया है वो हमारी आपस की सोच, और वो आपस की सोच ये है कि हम तरक्की करने वाले की टांग पकड़कर नीचे खींचते हैं। बोलो, किसी को इख्तिलाफ है कि इससे? आप में से कोई इस बात से इख्तिलाफ करेगा? हम टांग पकड़ के खींचते कि नहीं खींचते? एक आदमी आगे जा रहा है, मैं एक मिसाल देता हूं आपको, अगर औरंगाबाद में इम्तियाज जलील अगर आगे जा रहा है, उसको गिराने के लिए 3 से 4 लोग खड़े हुए हैं। एक आदमी जो मुल्क के अंदर मुसलमानों की आवाज बनता है, जो मुसलमानों के मिल्ली मसाइल पर बात करता है, जो मुसलमानों की जो है आवाज बन करके ललकारता है, और हमें अपना हक देने के लिए वो अपनी जानों को हथेली पर रखकर अगर कोई अगर निकलता है, हम उसको नीचा गिराने के लिए इतने नीचे गिर जाते हैं, पैसों में बिकते हैं, पैसों में तुल जाते हैं और कौम का सौदा करते हैं। मेरे भाइयों, कौम मिल्लत के साथ इससे बड़ी खयानत कोई नहीं हो सकती है कि अच्छे आदमी को हम आगे जाने से रोके। इससे बड़ी खयानत मिल्लत के साथ और शरीयत के साथ कोई नहीं हो सकती। इसलिए आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कुछ लोग वोट का पैसा ले लेते हैं, बिकने की बात आई तो इस पर मैं नतीजा बात खत्म कर रहा हूं। कुछ लोग वोट का पैसा लेते हैं, वोट का पैसा लेना और देना दोनों हराम है। शहादत है, शहादत को देने में पैसा नहीं लिया जाता। अमानत है, अमानत को पहुंचाने में पैसा और एवज नहीं लिया जाता। सिफारिश है, किसी की सिफारिश करने पर उससे पैसा नहीं लिया जाता। हराम है वोट का पैसा लेना। 500 रुपया, एक मतदान का 500 रुपया, 200 रुपया क्या हैसियत रखता है? हम तो हर महीने 300 और 400 रुपये का रिचार्ज मारने वाली कौम है। उससे 500 लेकर हमारा क्या बनने का और बिगड़ने का है? हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल का सौदा 500 में करेंगे, हम गंदी फिजाओं में रहने का फैसला 500 में करेंगे, हम अपने हुकूक वाजिबा को अपने हाथों से जो है बर्बाद करेंगे पैसा लेकर के। मेरे भाइयों, जब हम पैसा लेकर किसी को वोट देंगे, याद रखो मानसिकता ये बनेगी, साइकोलॉजिक तरीके पर ये बात आएगी, और नफ्सियाती तौर पर हम उससे आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते, इसलिए कि पैसा लिया है हमने। वो हमें याद रखते कि इन इलाके वालों ने पैसा लिया है, वो हमारा काम क्यों करेंगे? फिर हमारे लिए भला और हमारी बुनियादी सहूलतों का क्यों सोचेंगे? मुझे माफ करना मेरे भाइयों, मैं माजरत के साथ ये बात कह रहा हूं, लेकिन ये बात सिर्फ यहाँ की वहां की यहाँ की नहीं, एक जनरल बात है। सभी जगहों पर ऐसा होता है कि हमारे मुसलमान ईमान वाले भाई भी पैसा ले लेकर किसी नाकारों को वोट देकर आगे बढ़ा देते हैं। मेरे भाइयों, कैसी बात है ये, कैसी जो है ये कमजोर हरकत है मेरे भाइयों हमारी तरफ से। मुल्क के हालात अब बिल्कुल ऐसे नहीं है। बात खत्म कर रहा हूं, इसलिए अब हमारे इलाके में जो लोग हमारे सामने आए हैं, अब हम ये तो नहीं कहते कि सब अच्छे हैं और ये भी नहीं कहते कि सब बुरे हैं, लेकिन अब फैसला ये करना है कि जो ज्यादा बुरा नहीं है उसको आगे बढ़ा दो। समझ रहे बात मेरी? हाँ, जो ज्यादा बुरा नहीं है उन्हें आगे बढ़ाइए, उन्हें अपनी वोट की ताकत से उम्मीदवार को जिता करके कामयाब बनाइए। अब ये बात समझ रहे हैं ना? मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा। जो ज्यादा बुरा नहीं है, जो लोग युति की सरकार बना करके अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें समझाओ कि तुम लोग हमारे वोट को बेहैसियत समझते हो, बेवजन समझते हो, हमें कमजोर करने के लिए एक को दूसरे से लड़ाते हो। आप उनके यहाँ के कैंडिडेट को हरा करके जो जालिम हुकूमत आगे बनाना चाहते हैं, उन्हें ये बताइए कि हम बेदार हैं, सियासी शऊर रखते हैं, हम अपने उलमा की रहबरी पर चलते हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी रियासत के फलाह व मुस्तकबिल के लिए, फलाह व बहबूद के लिए और अपने बच्चों के अच्छे रोशन मुस्तकबिल के लिए इंशाअल्लाह आने वाली 20 तारीख को अच्छे लोगों का इंतखाब करके
अच्छे लोगों की सरकार बनाने की फिक्र करेंगे, ताकि हम 5 साल तक अमन व अमान के साथ भी रहे, मिल्लत के मसाइल को हम उठा सके और जो है हम अपने और अपने बच्चों के लिए बेहतर हुकूक की बातें कर सके। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।